श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 56 of the Ayodhya Kandam, which has 35 verses. Moving further the next morning and rejoicing on the way to see the loveliness of the forest, the party reaches Chitrakuta and enters the hermitage of Valmiki. Making up his mind to sojourn there with the permission of the sage, SriRama gets Lakshmana to erect a hut of leaves for themselves, and worshipping the deities presiding over the structure, they solemnly enter their abode at the propitious hour. आज हम षष्ठ पंचाशत सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 35 श्लोक हैं। वन की शोभा देखते दिखाते हुए श्री राम आदि का चित्रकूट में पहुंचना, वाल्मीकि जी का दर्शन करके श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा पांचाला का निर्माण तथा उसकी वस्तु शांति करके उन सब का कुटी में प्रवेश। अत रात्र्यां व्यतीतायाम् अवसुप्तम् अनन्तरं प्रबोधयामास शनैर्लक्ष्मणं रघुपुंगवः। तदंतर रात्रि व्यतीत होने पर रघुकुल शिरोमणि श्री राम ने अपने जागने के बाद वहां सोए हुए लक्ष्मण को धीरे से जगाया और इस प्रकार कहा। The night having slipped past, Sri Rama, a jewel among the Raghus, now gently roused in the following words Lakshmana, who lay asleep for a second time after waking from sleep. सौमित्रे शृणु वन्यानां वल्गु व्याहरतां त्वनं संप्रतिष्ठामहे कालः प्रस्थानस्य परन्तप। शत्रुओं को संताप देने वाले सुमित्रा कुमार, मीठी बोली बोलने वाले शुक पिक और जंगली पक्षियों का कलरव सुनो। अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करें क्योंकि प्रस्थान के योग्य समय आ गया है। Hear, O Lakshmana, son of Sumitra, the notes of sweetly wobbling wild birds, the parrot, the cuckoo, the myna, and so on. Let us duly resume our journey as the hour for departure has commenced. O tormentor of enemies. प्रसुप्तस्तु ततो भ्रात्रा समये प्रतिबोधितः जहौ निद्रां च तन्द्रां च प्रसक्तं च परिश्रमम्। सोए हुए लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई द्वारा ठीक समय पर जगा दिए जाने पर निद्रा, आलस्य तथा राह चलने की थकावट को दूर कर दिया। Awakened in time by his eldest brother, Sri Rama, Lakshmana, who was fast asleep for his part, immediately shook off his slumber, drowsiness, and fatigue consequent on the previous day's journey. तत उत्थाय ते सर्वे स्पृष्ट्वा नद्याः शिवं जलं पन्तानं ऋषिभिर्जुष्टं चित्रकूटस्य तं ययुः। फिर सब लोग उठे और यमुना नदी के शीतल जल में स्नान आदि करके ऋषि मुनियों द्वारा सेवित चित्रकूट के उस मार्ग पर चल दिए। Getting up and bathing in the cool waters of the Yamuna, they all then proceeded on the aforesaid path to Chitrakoot, trodden by the seers. ततः संप्रतिष्ठः काले रामः सौमित्रिणा सह सीतां कमलपत्राक्षीं इदं वचनम् अब्रवीत्। उस समय लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थित हुए श्री राम ने कमल नयनी सीता से इस प्रकार कहा। Having duly set out with Lakshmana, son of Sumitra, at that time, Sri Rama spoke as follows to the lotus-eyed Sita. आदीप्तान् इव वैदेही सर्वतः पुष्पितान् नगान् स्वैः पुष्पैः किंशुकान् पश्य मालिनः शिशिरात्यये। विदेही राजनंदिनी इस वसंत ऋतु में अब सब ओर से
खिले हुए इन पलाश वृक्षों को तो देखो, ये अपने ही पुष्पों से पुष्प मालाधारी से प्रतीत होते हैं और उन फूलों की अरुण प्रभा के कारण प्रज्वलित होते से दिखाई देते हैं। See, O Sita, princess of the Videhi clan, the Kimshuka, the beauty of frondosa trees, laden with blossoms on all sides, and appearing as though illuminated and adorned with garlands, as it were, due to the rose of their flowers in their venereal season, synchronizing with the close of winter. Pashya Ballathakan Bilwan Narair Upasevitan Phalapushpaihi Avanatan Nunam Sakshyama Jivitum. देखो, ये बिलावे और बेल के पेड़ अपने फूलों और फलों के भार से झुके हुए हैं। दूसरे मनुष्य का यहाँ तक आना संभव न होने से यह उनके द्वारा उपयोग में नहीं लाए गए हैं, अतः निश्चय ही इन फलों से हम जीवन निर्वाह कर सकेंगे। Look at the marking nut and the bale trees, not made use of by men, being out of their reach, and bent low under the weight of their fruit and their blossoms. We shall surely be able to live through in the forest. Pashya Drona Pramanani Lambamanani Lakshmana Madhukaribihi Sambritani Nage Nage. फिर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, यहाँ के एक एक वृक्ष में मधुमक्खियों द्वारा लगाए और पुष्ट किए गए मधु के छत्ते कैसे लटक रहे हैं। इन सब में एक एक द्रोण लगभग 16 सेर मधु भरा हुआ है। Behold, hanging from every tree, honeycombs equal in weight to a drona, that is 15 kilos, and constructed and stocked with honey by bees, O Lakshmana. Yesha Kroshati Natyuhastam Shikhi Pratikujati Ramaniye Vanodeshe Pushpa Santara Sankate. वन का ये भाग बड़ा ही रमणीय है। यह फूलों की वर्षा सी हो रही है और सारी भूमि पुष्पों से आच्छादित दिखाई देती है। इस वन प्रांत में ये चातक पी कहां की रट लगा रहा है। उधर वह मोर बोल रहा है, मानो पपीहे की बात का उत्तर दे रहा हो। Here is the chatak bird crying, and there is a peacock responding to it in a charming part of the forest, thick with scattered mass of flowers. Matanga Yutanushrutam Pakshi Sanghanunaditam Chitrakutam Imam Pashya Pravruddha Shikaram Girim. ये रहा चित्रकूट पर्वत, इसका शिखर बहुत ऊंचा है। झुंड के झुंड हाथी उसी ओर जा रहे हैं और वहां बहुत से पक्षी चहक रहे हैं। Look at this Chitrakuta hill with elevated peaks, a hill that is infested with herds of elephants and rendered noisy by flocks of birds. Sama Bhumi Tale Ramye Drumair Bahubihi Avrute Punye Ramsyamahe Tata चित्रकूटस्य कानने। तात जहाँ की भूमि समतल है और जो बहुत से वृक्षों से भरा हुआ है, चित्रकूट के उस पवित्र कानन में हम लोग बड़े आनंद से विचरेंगे। We shall sport, dear brother, in this lovely and holy forest of Chitrakuta, consisting of level grounds and covered by many trees. ततस्तौ पादचारेण गच्छन्तौ सह सीताया रम्यमासे दधुः शैलम चित्रकूटम मनोरमम। सीता के साथ दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पैदल ही यात्रा करते हुए यथा समय रमणीय एवं मनोरम पर्वत चित्रकूट पर जा पहुंचे। Going on foot with Sita, the two brothers then reached the delightful and soul-captivating Chitrakuta hill. तम तु पर्वतमासाद्य नाना पक्षि गणायुतम बहुमूल फलम रम्यम संपन्न सरसोदकम। वह पर्वत नाना प्रकार के पक्षियों से परिपूर्ण था। वहां फल मूलों की बहुतायत थी और स्वादिष्ट जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता था।
उस रमणीय शैल के समीप जाकर श्री राम ने कहा, reaching that lovely mountain abounding in flocks of birds of many kinds and having a rich stock of roots and fruits and having sweet water in abundance, SriRama for his part said to Lakshmana, मनोज्ञो अयं गिरिः सौम्य नाना द्रुमलतायुतः बहुमूलफलौ रम्यः स्वाजीवः प्रतिभाति मे। सौम्य, ये पर्वत बड़ा मनोहर है। नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं इसकी शोभा बढ़ाती हैं। यह फल मूल भी बहुत हैं। ये रमणीय तो है ही, मुझे जान पड़ता है कि यहाँ बड़े सुख से जीवन निर्वाह हो सकता है। Soul captivating is this delightful mountain, adorned with many trees and creepers and abounds with roots and fruits. To me, it appears to be a place where sustenance could be found with ease, O gentle brother. मुनयश्च महात्मानो वसन्त्यस्मिन् शिलोच्छये अयं वासो भवेत् तात वयमत्र वसेमहि। इस पर्वत पर बहुत से महात्मा मुनि निवास करते हैं। तात, यही हमारा वास स्थान होने योग्य है। हम यहाँ निवास करेंगे। High-souled ascetics too dwell on this mountain. It may prove habitable, O dear brother, so let us take up our abode here. इति सीता च रामश्च लक्ष्मणश्च कृताञ्जलिः अभिगम्याश्रमं सर्वे वाल्मीकिम् अभिवादयन्। ऐसा निश्चय करके सीता, राम और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश किया और सब ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। Saying so and entering the hermitage of Valmiki, Sita and SriRama and with folded hands Lakshmana too greeted sage Valmiki. तान् महर्षिः प्रमुदितः पूजयामास धर्मवित् अस्याथामिति चोवाच स्वागतं तं निवेद्य च। धर्म को जानने वाले महर्षि उनके आगमन से बहुत प्रसन्न हुए और आप लोगों का स्वागत है, आइए बैठिए, ऐसे कहते हैं उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। Greatly delighted and offering welcome to SriRama, the principal guest, the eminent sage Valmiki, who knew what is right, received him with honor and said, "Be seated." ततो अब्रवीन् महाबाहुर्लक्ष्मणं लक्ष्मणाग्रजः सन्निवेद्य यथा न्यायम् आत्मानं ऋषये प्रभुः। तदंतर महाबाहु भगवान श्री राम ने महर्षि का अपना यथेचित परिचय दिया और लक्ष्मण से कहा, Duly presenting himself to the seer according to the rules of propriety obtaining in those days, the powerful SriRama of mighty arms, the eldest brother of Lakshmana, then spoke as follows to Lakshmana. लक्ष्मण आनय दारूणि दृढानि च वराणि च कुरुष्व अवस्थं सौम्य वासे मे अभिरतं मनः। सौम्य लक्ष्मण, तुम जंगल से अच्छी अच्छी मजबूत लकड़ियां ले आओ और रहने के लिए एक कुटी तैयार करो। यहीं निवास करने को मेरा जी चाहता है। Fetch, O Lakshmana, strong and excellent logs of wood and erect a hut, O gentle brother. My mind is intent on dwelling here. तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सौमित्रिर् विविधान् द्रुमान् आजहार ततश्चक्रे पर्णशालाम् अरिन्दमः। श्री राम की यह बात सुनकर शत्रु दमन लक्ष्मण अनेक प्रकार के वृक्षों की डालियां काट लाए और उनके द्वारा एक पर्णशाला तैयार की। Hearing his aforesaid command, Lakshmana, son of Sumitra, brought boughs of various trees and with them the prince, a subduer of force, erected a hut of leaves. तां निष्ठितां बद्धकटां दृष्ट्वा रामः सुदर्शनां शुश्रूषमाणां एकाग्रमिदं वचनम् अब्रवीत्। वह कुटी बाहर भीतर से लकड़ी की ही दीवार से सुस्थिर बनाई गई थी। उसे ऊपर से छा दिया गया था जिससे वर्षा आदि का निवारण हो। वह देखने में बड़ी सुंदर लगती थी।
उसे तैयार हुए देखकर एकाग्रचित्त होकर अपनी बात सुनने वाले लक्ष्मण से श्री राम ने इस प्रकार कहा, Seeing the hut consolidated with a wall of strong wooden stakes and thatched and charming to look at, SriRama spoke as follows to Lakshmana, who stood listening with rapt attention. येनेयं मांसमाहृत्य शालां यक्ष्यामहे वयं कर्तव्यं वास्तुशमनं सौमित्रे चिरजीविभिः। सुमित्रा कुमार, हम गजकंद का गूदा लेकर उसी से पर्णशाला के अधिष्ठता देवताओं का पूजन करेंगे, क्योंकि दीर्घ जीवन की इच्छा करने वाले पुरुष को वास्तु शांति अवश्य करनी चाहिए। Fetching the pulp of the bulb known by the name of Gajakanda, we shall propitiate the deity presiding over the hut, roasting the pulp and offering it as an oblation to the deity. The rite of appeasing the evil spirit haunting a newly erected structure must be gone through by those wishing to live long. मृगं हत्वा अनय क्षिप्रं लक्ष्मणेह सुवेक्षणा कर्तव्यः शास्त्रदृष्टो हि विधि धर्मम् अनुस्मर। कल्याणदर्शी लक्ष्मण, तुम गजकंद नामक कंद को उखाड़ कर यहाँ खोद कर शीघ्र यहाँ ले आओ, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि का अनुष्ठान हमारे लिए अवश्य कर्तव्य है। तुम धर्म का ही सदा चिंतन किया करो। Digging out the bulb known by the name of Gajakanda, bring it here at once, O fair-eyed Lakshmana, for the procedure laid down in the scriptures must be observed, and always mind your sacred obligations. भ्रातृवचनम् अज्ञाय लक्ष्मणः परवीरः चकार च यथोक्तं हि तं रामः पुनरब्रवीत्। भाई की इस बात को समझकर शत्रु वीरों का वध करने वाले लक्ष्मण ने उनके कथन अनुसार कार्य किया। तब श्री राम ने पुनः उनसे कहा, Clearly perceiving the command of his eldest brother, the aforesaid Lakshmana, the destroyer of hostile warriors, actually did as he was told, and SriRama said to him again, येनेयं श्रपयस्वै तत्शालां यक्ष्यामहे वयं त्वर सौम्य मुहूर्तोयं ध्रुवश्च दिवसो ह्ययम्। लक्ष्मण, इस गंज कंद को पकाओ, हम पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे। जल्दी करो, ये सौम्य मुहूर्त है और ये दिन भी ध्रुव संज्ञा के, अतः इसी में ही ये शुभ कार्य होना चाहिए। Dress this bulb, we shall propitiate the deities, the fire god, the Parajanya, and so on, numbering 50, presiding over the hut by offering the dressed bulb to them. Look, sharp, the current is a propitious hour, and this day too bears the name of Dhruva, the undying. स लक्ष्मणः कृष्णमृगं हत्वा मेद्यं प्रतापवान् अथ चिक्षेप सौमित्रिः समिद्धे जातवेदसी। प्रतापी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने पवित्र और काले छिलके वाले गजकंद को उखाड़कर प्रज्वलित आग में डाल दिया। Unearthing the bulb which had a black peel and is fit for being offered as an oblation to the gods, the aforesaid Lakshmana, son of Sumitra, full of glory as he was, forthwith cast it into the blazing fire. तत्तु पक्वं समाज्ञाय निष्टप्तं छिन्नशोणितं लक्ष्मणः पुरुषव्याघ्रम् अथ राघवम् अब्रवीत्। रक्त विकार का नाश करने वाले उस गज कंद को भली भांति पका हुआ जानकर लक्ष्मण ने पुरुष सिंह श्री रघुनाथ जी से कहा, Having definitely come to know that its pulp had been fully roasted and dressed and divested of its ruddy color, Lakshmana now submitted as follows to SriRama, a tiger among men. अयं सर्वः समस्तांगः श्रुतः कृष्णमृगो मया देवता देवसंकाश यजस्व कुशलो ह्यसि। देवोपम तेजस्वी श्री रघुनाथ जी,
ये काले छिलके वाले गजकंद को, जो बिगड़े हुए सभी अंगों को ठीक करने वाला है, मेरे द्वारा संपूर्णता पका दिया गया है। अब आप वस्तु देवताओं का यजन कीजिए, क्योंकि आप इस कार्य में कुशल हैं। This bulb, known by the name of Gajakanda, has and endowed with a black peel, and by which all disordered limbs are put right and have been fully dressed by me, pray, propitiate the gods presiding over the hut by offering it as an oblation to them, inasmuch as you are well versed with this rite, O brother, vying with the gods in glory. रामः स्नात्वा तु विनयतो गुणवाञ्जपकोविदः संग्रहेण अकरोत् सर्वान् मंत्रान् सत्रावसानिकान्। सद्गुण संपन्न तथा जप कर्म के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक संक्षेप से उन सभी मंत्रों का पाठ एवं जप किया, जिनसे वास्तु यज्ञ की पूर्ति हो जाती है। Having finished his bath and fully disciplined as he was, SriRama, for his part, who was full of virtues and well versed in the sacred texts to be said on the occasion, went through in brief the ceremony of Vastu Shanti, reciting the sacred texts bearing on the conclusion of a sacrificial performance. इष्ट्वा देवगणान् सर्वान् विवेशा असतं शुचिः बभूव च मनोह्लादो रामस्य अमित तेजसः। समस्त देवताओं का पूजन करके पवित्र भाव से श्री राम ने पनकुटी में प्रवेश किया। उस समय अमित तेजस्वी श्री राम के मन में बड़ा आहत हुआ। Having propitiated all the hosts of gods presiding over the newly erected hut and thus purified, Sri Rama entered the hut. Nay, great satisfaction of mind was caused thereby to Sri Rama, who was possessed of immense glory. वैश्वदेव बलिं कृत्वा रौद्रं वैष्णवमेव च वास्तु संशमनीयानि मंगलानि प्रवर्तयन्। तत्पश्चात बलि वैश्वदेव कर्म रुद्र याग तथा वैष्णव याग करके श्री राम ने वास्तु दोष की शांति के लिए मंगल पाठ किया। जपं च न्यायतः कृत्वा स्नात्वा नद्यां यथाविधि पाप संशमनं रामश्चकार बलिम् उत्तमम्। नदी में विधि पूर्वक स्नान करके नियत गायत्री आदि मंत्रों का जप करने के अनंतर श्री राम ने पंचसूना आदि दोषों की शांति के लिए उत्तम बलि कर्म संपन्न किया। Having bathed in the river Mandakini according to the procedure laid down in the scriptures, and saying the sacred texts such as the Gayatri in the right way, and intending as he did to perform solemn rites calculated to ward off the evil attendants of a new construction, Sri Rama offered excellent oblations to Lord Rudra and Lord Vishnu too, after performing the Vishwadeva, a religious ceremony which ought to be performed every morning and evening, and especially before the midday meal, and consists in homage paid to the Vishwadevas, followed by the Baliharanas, or offering of small portions of cooked food to the gods, who give the food, and especially to the gods of fire, who cooks the food for us and bears the offering to heaven. वेदिस्थल विधानानि आयचैत्यानि आयतनानि च आश्रमस्य अनुरूपाणि स्थापयामास राघवः। रघुनाथ जी ने अपनी छोटी सी कुटी के अनुरूप ही वेदी स्थल 8 दिक्पालों के लिए बलि संपन्न के स्थानों, चैत्यों, गणेश आदि के स्थानों तथा आयतनों, विष्णु आदि देवों के स्थानों का निर्माण एवं स्थापना की। Sri Rama, a scion of the Raghu, erected and consecrated altars of a size proportionate to the size of the hut for offering oblations to the 8 guardians of the quarters and the intermediate points, and the chaityas, the places of worship of Ganesha and other gods, and the ayatanas, places of worship of Lord Vishnu and the others. ताम वृक्षपर्णच्छदनां मनोज्ञां यथा प्रदेशं सुकृतां
निवातां वासाय सर्वे विविशुः समेताः सभां यथा देवगणाः सुधर्माम्। वह मनोहर कुटी उपयुक्त स्थान पर बनी थी। उसे वृक्षों के पत्तों से छाया गया था और उसके भीतर प्रचंड वायु से बचने का पूरा प्रबंध था। सीता, लक्ष्मण और श्री राम सबने एक साथ उसमें निवास के लिए प्रवेश किया, ठीक वैसे ही जैसे देवता लोग सुधर्मा सभा में प्रवेश करते हैं। Even as multitudes of God entered their assembly hall named Sudharma in the heaven, all the three princely exiles entered together for habitation. The aforesaid soul-captivating hut, thatched with leaves of trees, erected well on a suitable site and sheltered from the winds. सुरम्यम् आसाद्य तु चित्रकूटं नदीं च तां माल्यवतीं सुतीर्थां ननन्द हृष्टो मृगपक्षिजुष्टां जहौ च दुःखं पुर विप्रवासात्। चित्रकूट पर्वत बड़ी ही रमणीय था। वहां उत्तम तीर्थों, तीर्थ स्थान, सीढ़ी और घाटों से सुशोभित माल्यवती मंदाकिनी नदी बह रही थी, जिसका बहुत से पशु पक्षी सेवन करते थे। उस पर्वत और नदी का सानिध्य पाकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा हर्ष और आनंद हुआ। वे नगर से दूर वन में आने के कारण होने वाले कष्टों को भूल गए। Rejoiced to reach the exceedingly delightful Chitrakuta and the celebrated river Malyavati, the Mandakini, which was provided with good descendants and was sought by beasts and birds, SriRama, for his part, rejoiced and shed the agony caused by his exile from the city of Ayodhya. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 56 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 56 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranam Tutulyam Rama Nama Varanane Om Apadam Apartaram Dataram Sarva Sampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।